نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے نہایت مفید مشورہ دیا ہے۔ اگر جنرل فیض نے فوجی ڈسپلن توڑا اور آرمی چیف کو دھوکہ دیا ہے تو بھرپور کارروائی کی جائے، ورنہ جیسے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اپنے دست راست فیض کا دفاع کرتے تھے، ویسے ہی جنرل عاصم منیر بھی فیض کا دفاع کرے۔ اپنی تازہ سیاسی تجزیے میں افسر عالم مزید کہتے ہیں کہ بیشتر اس کے کہ کامران خان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے موجودہ آرمی چیف بھی جنرل باجوہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل فیض کا دفاع کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ کچھ معاملات اور وجوہات پر اب بات ہو ہی جائے کہ کیا جنرل فیض نے ڈسپلن توڑا یا نہیں، اور جنرل باجوہ جن خاص وجوہات اور ذاتی مفادات کی خاطر جنرل فیض کے دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، تو کیا وہ مشترکہ مفاداتی سسٹم اب بھی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے باجوہ ڈاکٹرائن کے بدنام زمانہ دور میں چل رہا تھا؟ افسر عالم بتاتے ہیں کہ مئی 2017 میں باجوہ ڈاکٹرائن کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ کے 5 ہم خیال ججز پوری تندہی سے پاناما میں سے اقامہ نکال کر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کرنے کے 2 سالہ پلان کے آخری مراحل طے کر رہے تھے، تو جنرل فیض اور ان کے حواریوں نے سوچا کیوں نہ اس گرم تندور میں اپنی بھی اربوں روپے کی 2 چپاتیاں لگائی جائیں۔ بلٹ ٹرین کی رفتار سے ایک منصوبہ بنا اور اسلام آباد میں موجود دہشت گردوں کے انتہائی خطرناک گینگ کو پکڑنے کا آپریشن پلان کیا گیا۔ افسر عالم کے مطابق میرے محلے F11 میں 12 مئی 2017 کو نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رینجر کی درجنوں گاڑیاں، ٹرکوں اور ایمبولینسز کا کانوائے 100 سے زائد مشین گنوں سے مسلح سولجرز کے ساتھ داخل ہوا۔ آپریشن کے طے شدہ پلان کے تحت گاڑیاں F11 کی مختلف گلیوں میں داخل ہوئیں اور ایک مقررہ وقت پر 4 گھروں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن فیضی رد الدہشت گردی کا آغاز F11-4 میں رمیش سنگھ اروڑا کے گھر سے ہوا۔ دیواریں پھلانگ کر مسلح وردی پوش اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد گھر کے اندر لکڑی کا دروازہ توڑ کر کمروں میں گھس گئے۔ رمیش سنگھ جو کہ پنجاب اسمبلی کے اقلیتی ممبر تھے اور ان کا خاندان کرتارپور سنگھ گردوارہ کے نسل در نسل نگران ہیں، خود اس وقت کرتارپور گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوفزدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو ملتا کیسے؟ افسر عالم کے مطابق کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کی دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں، بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور 4 دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ افسر عالم مزید بتاتے ہیں کہ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازہ توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹک کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا، جس کی قیمت خربوں تھی، اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا۔
गंदी गालियां दी गईं और फिर सर मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर रेंजर की गाड़ियों में फेंका गया। घर का कीमती सामान, कैश, करेंसी, कागजात और लाइसेंसी असला ट्रकों में डाला और कश्मीर हाईवे पर गोलरा के करीब एक कॉम्प्लेक्स के तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। चीफ साहब, आपको पता ही होगा ये जगह किसके पास है। अफसार आलम के मुताबिक F11 के 2 मजीद घरों में ऐसा ही ऑपरेशन किया गया और वहां से हाउसिंग सोसाइटी के 2 अफसरान को भी बेईमाना तरीके से यरगमाल बनाकर उसी तहखाने में शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर अगले कई दिन और रात तफ्तीश की आड़ में सुसर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और उसके 2 एग्जीक्यूटिव्स पर 3rd डिग्री शदीद तशद्दुद किया गया और बजाय दहशतगर्दी का पूछने के उसकी हाउसिंग सोसाइटी के कागजात की मिल्कियत बारे पूछते रहे। चंद दिनों बाद जब इन्हें लगा कि इस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का दिमाग ठिकाने आ गया है तो उसको एक और कमरे में ले जाया गया जहां उसके सामने उसकी हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात रखे गए और उसे हुक्म दिया गया कि इस पर दस्तखत कर दो। उन कागजात में प्रॉपर्टी की 50% ट्रांसफर किसी नजफ नामी शख्स के नाम पर और बकिया 50% ट्रांसफर लंदन के एक रिहायशी मासूमा के नाम पर मुंतकिल की गई थी। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने दस्तखत करने से फिर इनकार कर दिया। मजीद तशद्दुद सहना पड़ा लेकिन वो न माना। आखिरकार उस पर 780A के तहत दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद रखने का पर्चा काटकर CTD पिंडी के हवाले कर दिया गया। अगले 3 साल केस चलता रहा जिसमें वो ना सिर्फ बाइज्जत भरी हुआ बल्कि हाई कोर्ट ने भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला बरकरार रखा और अब अपील सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दिए जा रही है, लेकिन जजेस अपनी सियासत में मसरूफ हैं। अफसार आलम के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के तफसीली फैसले में झूठे इल्जामात लगाने पर प्रोसिक्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। फैसला पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इस वतन में कितना जुल्म और नाइंसाफी है, लेकिन हमारा गला सड़ा अदालती निजाम दहाइयों बाद भी इंसाफ देने से कासिर। बूढ़ा 75 साल का सुसर जो अपनी बेटी और उसके बच्चों से मिलने 2 दिन के लिए कराची से आया था, वो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद को बर्दाश्त न कर सका और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गया। कभी इस्लामाबाद वापस न आया और 2 साल बाद अपने केस उठाकर अल्लाह की अदालत में पेश हो गया। तमाम फैमिली मेंबर्स 3 साल के लिए बैरून मुल्क चले गए और अपने नफ्सियाती मसाइल का मदावा करके वापस आए। अफसार आलम का कहना है कि ये वाकया बाजवा डॉक्ट्राइन के दौरे फैजी की देग में से चावल का सिर्फ एक दाना है, जिससे अंदाजा हो सकता है कि सरकारी ओहदे और वर्दी की आड़ में माल समेत फाशिज्म किस किस लेवल पर जारी था। इससे पहले भी जब जनरल रिजवान DGISI था तब 4 निजी टीवी चैनल्स के मालिक को इस्लामाबाद से रात की तारीकी में उठाया गया और उसको भी एक सेफ हाउस के तहखाने में बंद रखकर तब तक ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया जब तक उसने अपने टीवी चैनल्स की मिल्कियत के ट्रांसफर के कागजात पर दस्तखत नहीं कर दिए। जब तक वो मीडिया ऑनर यरगमाल रहा, उसके घर वालों को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं। फैमिली हमेशा के लिए खौफजदा और नफ्सियाती मरीज हो गई। उन टीवी चैनल्स का कब्जा पहले एक होटल चैन के मालिक और उसके मुलाजिम जो आजकल तमाम टीवी चैनल्स पर अपना इस्टेब्लिशमेंटी इमरानी तज्जियाती ज्ञान बांटता है और फिर बाद में एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दिया गया जिसने एक और इस्टेब्लिशमेंटी इमरानी ज्ञान बांटने वाले एंकर को उसका मुख्तारे कुल बना दिया और फिर कुछ अरसे बाद पैसा हजम और खेल खत्म। लेकिन इस दरमियानी वक्फे में उन टीवी चैनल्स और तज्जियाकारों ने नवाज शरीफ को गद्दार और करप्ट करार देकर हटाने और इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश करने की प्रोपेगेंडा मुहिम में भरपूर हिस्सा डाला। 5th जनरेशन वार के नाम पर झूठ और बोहतान के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में नफरत और जहर भरकर पाकिस्तानी माशरे को तकसीम कर दिया गया। अफसार आलम के मुताबिक जनरल पाशा और जनरल जहीर के सुनहरी दौर में भी अगवा बराए तावान के डॉक्ट्राइन इस्लामाबाद में बड़े जोरों शोर से जारी रही और उसका कोई तोड़ ना कर सका। एक बिजनेसमैन जिसका एजनास का कारोबार है और वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले शहरियों में भी शामिल है, एक दिन शाम को दफ्तर से F8 घर जाने के लिए निकला तो अचानक रास्ते से गायब हो गया। ढूंढिया मची तो गाड़ी रात को एक वीरान सी सड़क से मिली, लेकिन गाड़ी वाला गायब।
घर वालों से किसी ने राब्ता किया और कहा कि अगर उसे लाश की बजाय जिंदा हालत में वसूल करना है तो 40 करोड़ रुपयों का बंदोबस्त कर लें। उस कारोबारी शख्स को बगैर किसी रुकावट के इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान पहुंचा दिया गया था। इस दौरान बातचीत होती रही और आखिरकार अगवाकार, जो अपना ताल्लुक एक इंतहा पसंद मजहबी तंजीम से बता रहे थे, मुख्तलिफ ताकतवर सरकारी और मजहबी शख्सियात की सिफारिश और महारत और गारंटी से 8.5 करोड़ रुपयों के तावान लेने पर राजी हो गए। याद रहे कि उस वक्त $1 सिर्फ 80-90 रुपए के दरमियान था। एक वीरान और महफूज जगह पर मुखबियान को रकम अदा करके बिजनेसमैन को जिंदा वसूल कर लिया गया। जिस घर के जिस कमरे में उस बिजनेसमैन को रखा गया था, वहीं उसी जगह कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक मशहूर मनी चेंजर को भी अगवा करके मेहमान बनाया गया था। वो भी 2 करोड़ रुपए अदा करके रिहा हुआ। अफसार आलम कहते हैं कि चीफ साहब, जितने लोगों का मैंने यहाँ जिक्र किया है, मैं उन सब से बार बार मिलकर इन वाकयात की तस्दीक कर चुका हूँ, लेकिन खौफ का ये आलम है कि सिवाय रमेश सिंह अरोड़ा के तमाम लोगों ने कहा कि हमारा नाम ना लिखना, क्योंकि रिटायर्ड होने वाले फिरौनों की बाकियात अब भी इदारों के अंदर बैठी हैं और इनको, उनकी फैमिली मेंबर्स को और इनके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन फिर भी चंद लोग अभी हैं जो अपने साथ होने वाले जुल्म के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना चाहते हैं और मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते एस्टेब्लिशमेंट खुद एहतिसाबी का आगाज करे और जैसा कि कामरान खान ने मशवरा दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफसार आलम सवाल करते हैं कि सोचें, अगर कौम के टैक्सों से ली गई वर्दी, असला और सरकारी पोजीशन पाकिस्तान के टॉप के टैक्स पेयर्स से नाजायज तौर पर माल हथियाने, उनके कारोबार या जमीनों पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल होना है, तो फिर इस मुल्क में बिजनेस कौन करेगा? टैक्स कौन देगा? मईशत कैसे तरक्की करेगी? कामयाब लोग और टैक्स पेयर्स पाकिस्तान में क्यों रहें? जब हमारी इंटेलिजेंस और हमारी बंदूकें हम पर ही तनी रहेंगी, तो दुश्मन और दहशतगर्द हमारे घर में घुसकर हमें क्यों नहीं मारेगा? ऐसा क्यों है कि दुश्मन से बचाने वाले कई जिम्मेदारों की नजर सिर्फ अपनी और अपनी 7 पुश्तों के लिए दौलत जमा करने पर होती है? सोचिए, इस्लामाबाद में रहने वाले हर काबिल जिक्र फर्द को इन अगवा बराए तावान वाकयात का इल्म है, लेकिन ना किसी मीडिया हाउस ने इन जाली कार्रवाइयों को नशर किया, ना किसी जज ने सो मोटो लिया, ना किसी जर्नल ने पेटी भाइयों के जुल्म के खिलाफ कोई रद्दुल तावान ऑपरेशन किया, और ना ही किसी वजीर आजम, वजीर मुशीर में जुर्रत थी कि ऐसे जराइम करने वालों को कानून के कटहरे में लाता। उम्मीद है ये सब पढ़ने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आसानी से फैसला कर सकेंगे कि कामरान खान के मशवरे के किस हिस्से पर अमल करना है। क्या उन्होंने चंद जनरल्स के जाती फायदे के लिए किए गए माजी के जराइम का दिफा करना है, या ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वर्दी की साख बहाल करनी है? चीफ साहब, आप ताकतवर हैं, मालिक हैं, जो चाहें फैसला करें। आइन और कानून के रास्ते पर चलकर इंसाफ करेंगे, मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे, वर्दी पहनकर की जाने वाली ज्यादतियों और जुल्म का रास्ता बंद करेंगे, तो ये कौम आपको अच्छे अल्फाज में याद करेगी और कुदरत मजीद नवाजेगी। लेकिन अगर आप अपने से पहले आने वालों के रास्ते पर चले, तो याद रखिएगा कि एक दिन आएगा, वो दिन कि जिसका वादा है, मानो ना मानो, जाने जहां इख्तियार है, हम नेक व बद हुजूर को समझाए देते हैं। YouTube पर